Now in this lecture, we will discuss about the acceleration, velocity and displacement of simple harmonic motion. We know already the differential equation of linear simple harmonic motion is d square x by dt square plus omega square x equal to 0. Where d square x by dt square is the acceleration, omega is the angular frequency, and omega square equal to what? K by m. That is the force per unit. Sorry, this is nothing but force per unit displacement. इसका मीनिंग क्या होता है? Force per unit displacement. Now, from this equation, d square x by dt square x plus omega square x equal to 0. Therefore, d square x by dt square is equal to, take that omega square x towards the right hand side, it becomes minus omega square x. This is nothing but the acceleration of simple harmonic motion of the particle which will be performing linear simple harmonic motion. Here that negative sign again indicate that acceleration and displacement are opposite to each other. If that omega square will be considered constant, so d square x by dt square is proportional to minus x. Again it satisfies the two conditions of that simple harmonic motion, that is acceleration is directly proportional to displacement and the directions are opposite to each other. Now we will find out the equation for velocity. So acceleration in simple harmonic motion, d square x by dt square is equal to minus ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये इक्वेशन का क्या होगा अपना? एक्सेलरेशन. बट डी स्क्वायर एक्स बाय डी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ दैट dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इस क्या किया मैंने हमने? d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर को क्या लिखा हमने? डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dt. This is the displacement and this rate of change of displacement with respect to time, इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी. सो दिस इज dv by dt is equal to minus omega square x. Rearrange that term, dv by dx into dx by dt is equal to minus omega square x. इस dv को dx से डिवाइड किए, बाद में फिर से dx से मल्टीप्लाई करते हैं, dt इसके नीचे ला लिए, फिर से dx, अगर dx कैंसिल करते हैं तो फिर से अपने को dv by dt मिल रहा है. But again this what is this? This is nothing but the velocity that we are taking. So this becomes v into dv. This complete quantity means velocity multiplied by dv. I will take that dx towards the right hand side. So it becomes minus omega square x into dx. Then taking integration on both the sides, so this becomes integration of v into dv is equal to minus integration of omega square x into dx. From that integration of v into dv means क्या होता है? v square by 2 is equal to minus ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी क्या था अपना? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k by m. तो क्या है? कांस्टेंट. सो देयरफॉर दैट विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन. इसका आउटसाइड द इंटीग्रेशन में क्या बचा? x into dx. और इसका इंटीग्रेशन में क्या होगा? x square by 2 plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज c. Now suppose this is the path on which the particle is performing linear simple harmonic motion. इसको बोला जाता है पोजीशन, मीन पोजीशन. This is the right extreme position and this is the left extreme position.
जब यहाँ पर पार्टिकल ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा उसका दैट विल बी अप टू दिस पॉइंट ए और अप टू दिस पॉइंट बी। मीन पोजीशन से सेंटर से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक रह सकता है, तो इस पॉइंट ए तक के या तो इस पॉइंट बी तक के। इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बाहर वो जाएगा नहीं, पॉइंट बी के इस तरफ और पॉइंट ए के उस तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि जो पाथ है हमने यहाँ पे डिसाइड किया कितना है, ओनली AB is the path on which the particle is performing simple harmonic motion। तो ये जो उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है उसको, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसा देखो यहाँ पे पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, when it reaches to the extreme position, यहाँ पे आके रुकेगा, फिर यहाँ से रिवर्स होगा, मींस एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन इट्स वेलोसिटी बिकम 0 और नॉट। जैसा पेंडुलम है, ये होगी मीन पोजीशन, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये होगी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे इसको यहाँ से अपन ने डिस्प्लेस कर दिया, क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आके जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे रुकेगा ना। अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो क्या वो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं हो रहा है। इस यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रही है, फिर से क्या हो रहा है, यहाँ से वो रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे आएगा मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे इससे आगे 0 होगी तो ये यहाँ से रिवर्स होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह से एट द एक्सट्रीम पोजीशन जब पार्टिकल इस पॉइंट ए पर रीच होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, दैट इज प्लस माइनस है। इस तरफ रहेगा तो प्लस है, इस तरफ लेंगे तो माइनस है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, x इक्वल टू प्लस माइनस के। समझ में आया क्या बोला मैंने, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जिस क्या बोलते हैं अपन ने, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। देयरफॉर x इक्वल टू क्या लिया अपन यहाँ पे, प्लस माइनस के। पुट दिस वैल्यू ऑफ v and x इन दिस इक्वेशन, सो विल गेट हियर v की वैल्यू क्या है, 0, इस v स्क्वायर बाय 2 क्या हो गया, 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर भी लोगे तो प्लस a का स्क्वायर तो प्लस a स्क्वायर ही होगा, माइनस a का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस a स्क्वायर होगा। फिर दिस इज a स्क्वायर एंड दैट टू एज इट इज प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फ्रॉम दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। ओके, क्योंकि माइनस साइन है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यू विल गेट c इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। पुट दिस वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन दिस इक्वेशन, सो यू विल गेट हियर v स्क्वायर बाय 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2। जैसे इक्वेशन दे रहा हूं मैं, जहां पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू पुट अप करेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 get cancelled, you will get here b square equal to, I will take here omega square common, so in bracket a square minus this x square, so therefore b equal to plus minus omega under root of a square minus x square, and this is the expression for that velocity of the particle performing simple harmonic motion। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पे शो हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो प्लस साइन, नेगेटिव साइड में जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाले थे अपन ने, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वेलोसिटी का इक्वेशन निकाले v प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अच्छा तीसरा बंदा अपना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना। फॉर दैट अगेन वेलोसिटी का इक्वेशन अभी निकाले अपन ने, क्या था इक्वेशन अपना वेलोसिटी का, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो निकाले हमने अपन ने यहाँ पर
plus minus omega under root of a square minus x square. Therefore, you know already velocity is the rate of change of displacement with respect to time. इसी जो v उसके जगह पे क्या ले रहे हैं अपन dx by dt plus minus omega under root of a square minus x square. Then rearrange the term here. dx वेरिएबल के साथ में x वाली टर्म लेके आओ. इस dx upon under root of a square minus x square. क्योंकि ये dx है तो dx साथ में x वाली टर्म माइनस का डिनोमिनेटर आ गया. ये ओमेगा है. इस ओमेगा के साथ में dt में टाइम वाली टर्म ये ओमेगा के साथ में. क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय t. टाइम है वहां पर. तो डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म के साथ में डिस्प्लेसमेंट टर्म लाया अपन और टाइम वाले टर्म के साथ में टाइम वाले टर्म लेंगे. Then integrating both the side. This is the standard equation of integration a square minus x square. Capital letter. Okay. Standard equation of integration अगला एक लिए और इसका इंटीग्रेशन होता है sin inverse of x by a. क्या होता है? Sin inverse of x by a is equal to integration of omega dt. इस ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dt is t plus constant of integration suppose phi. From that sin inverse of x by a equal to omega t plus phi. So therefore x by a equal to sin of omega t plus phi. And from that x equal to x equal to a sin of omega t plus phi, and this is the equation for that displacement of the particle performing SHM at any instant t, at any instant t or at any time t. X equal to a sin of omega t plus phi. Now here we will take the two conditions. First one, that is the if the particle starts motion from the mean position. पार्टिकल कहां से मोशन स्टार्ट कर रहा है मतलब मीन पोजीशन से. पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम विच पोजीशन? मीन पोजीशन. जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने यहाँ पे डायग्राम बनाया थी कि अपनी मीन पोजीशन, ये थी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी थी एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही है एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 और नॉट. एंड जिस समय मोशन स्टार्ट कर रहे हैं उस समय टाइम कर लेंगे अपन एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0. पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. यू विल गेट x इक्वल टू a. So x equal to 0 and t equal to 0. So from this equation, this one, sin inverse of x by a equal to omega t plus phi means sin inverse of x by a equal to क्या है यहाँ पर ओमेगा t plus phi. बट x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0. तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट अप करते क्या हो जाएगा टोटली sin inverse of 0. Here also t की वैल्यू 0 पुट अप करते क्या हो जाएगा टोटली 0. This you will get here phi equal to sin inverse of 0 and sin inverse of 0 is क्या होता है 0. This you will get here what phi equal to 0. Put this value of phi equal to 0 in this equation. You will get here x equal to a sin of omega t. क्या मिलेगा x equal to a sin of omega t means if the particle starts its motion from the mean position, the displacement of the particle is considered x equal to a sin of omega t. यहाँ पे अपन प्लस माइनस भी ले सकते हैं. So this is plus minus a omega t. यहाँ पर प्लस साइन क्या शो करेगा? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा? पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन. ये हो गया कौन से पोजीशन से? मीन पोजीशन से. लेकिन उसी के जगह पे if the particle starts its motion from the extreme position. सेकंड केस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर अपन. Particle starts its motion from which position? Extreme position.
अब एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे तुमको मालूम है पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा तो टाइम करेगा t इक्वल टू 0 बट द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ये बताया तुमको मैंने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a और प्लस माइनस a r। इस तरफ रहेगा तो प्लस a, इस तरफ रहेगा तो माइनस a। इसे x इक्वल टू क्या लेंगे अपन, प्लस माइनस a। x इक्वल टू प्लस माइनस a and time t equal to what, 0. From this value, from this equation again, sin inverse of a upon a is equal to omega t की वैल्यू 0 plus 5. This is equal to sin inverse of 1 is equal to 5. The sin inverse of plus minus 1 is equal to 5. So therefore 5 equal to sin inverse of plus minus 1. This becomes pi equal to pi by 2 or 3 pi by 2. क्योंकि pi by 2 अगर वैल्यू पुट करते हैं अपन तो sin pi by 2 कितना हो जाएगा, प्लस 1। इसीलिए sin इनवर्स ऑफ प्लस 1 इसके आएगा pi by 2 और sin 3 pi by 2 वैल्यू क्योंकि माइनस 1 इसलिए क्या आएगा sin इनवर्स ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 3 pi by 2. Put this value of phi again in this equation, that is x equal to plus minus a sin of omega t plus phi. So you get here x equal to a sin of omega t plus pi by 2. But sin of omega t plus pi by 2 means होता है cos of omega t. This becomes x equal to a cos of omega t. Means अगर पार्टिकल की मोशन अगर कौन सी पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से अगर लेते हैं अपन तो उस समय डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लेना, x इक्वल टू a cos of omega t और x इक्वल टू प्लस माइनस a cos of omega t. फिर से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, तो मोशन विल बी गेट स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव साइन है तो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन. Here we are saying that when the particle starts its motion from the mean position, you will take the displacement equation x equal to a sin of omega t. अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है तो x इक्वल टू क्या होगा अपन में a cos of omega t. मींस एग्जैक्टली पार्टिकल मीन या एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा ऐसा नहीं है इसका मीनिंग. इसका मीनिंग ऐसा है कि जब पार्टिकल यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उस समय अपन किस पोजीशन से उसका ऑस्किलेशन दिखना शुरू कर रहे हैं, किस पोजीशन से उसके अपन मोशन मेजर करना शुरू कर रहे हैं उस समय एक इक्वेशन कंसीडर करना है. जैसा यहाँ पे पार्टिकल ऑलरेडी 2 एंड 4 का मोशन परफॉर्म करते रहेगा, सपोज अपन ने ऑस्किलेशन यहाँ से कितना शुरू किए उस समय अपन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन करेंगे x इक्वल टू a sin of omega. अगर एक्सट्रीम पोजीशन से कितना स्टार्ट किया अपन ने तो x इक्वल टू क्या पड़ेगा अपने को a cos of omega t. ओके, सो इन दिस वे एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या निकला था अपना, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. वेलोसिटी का इक्वेशन क्या निकला था, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या निकला था एट इंस्टेंट a sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi. और मोशन का कंसीडर करते हैं अपन मीन पोजीशन से, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या लेना है a sin ऑफ ओमेगा t और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा. लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे, ऑलवेज ये डिस्प्लेसमेंट कहां से कंसीडर किया जाता है, मीन पोजीशन से कंसीडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर इसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और तुमको बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन एंड इट रीचेस अप टू द डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन. इस समय x की वैल्यू यहां पर 2 सेंटीमीटर नहीं लेंगे अपन, x की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 5 minus 2 that is equal to how much, 3 centimeter. इस कभी भी डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल मोशन कहीं से भी स्टार्ट करे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. जैसा यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से 2 सेंटीमीटर का आ गया हो, लेकिन मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे वो 3 सेंटीमीटर पे. इक्वेशन हालांकि अपन ये यूज करेंगे लेकिन x की वैल्यू क्या रहेगी अपनी फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओके.